गुजरात के छोटा उदयपुर के बोडेली में जिला भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। गुजरात के छोटा उदेपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 6 अप्रैल यानी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस से लेकर 14 अप्रैल यानी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जन्म जयंती को मनाने के भागरूप बोडेली बाजार समिति में जिला प्रबुद्ध नागरिकों का सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें जिले के प्रबुद्ध नागरिक यानी संत, शिक्षक, वकील, बिजनेसमैन, डॉक्टर, दलित समाज के लोग, ब्रह्म समाज के अग्रणी इत्यादि उपस्थित रहे। इस मौके पर प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन में वक्ता के रूप में सूरत की पूर्व मेयर डॉक्टर जगदीश पटेल और वडोदरा की विधायक मनीषा वकील उपस्थित रही। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के जन्म से लेकर मौत तक की सफल गाथा को सभी के सामने बयान किया। आज छोटाउदेपुर जिला भारतीय जनता पार्टी द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर एमने जे भारतीय बंधारण અને રાષ્ટ્રહિત માટે જે કાર્ય કર્યું છે એને ઉજાગર કરવા માટે એક પ્રબુદ્ધ નાગરિક સંમેલન અહીંયા બોડેલી એપીએમસી ખાતે યોજાયું। એમાં પ્રદેશમાંથી પ્રવક્તા તરીકે અમારા જગદીશભાઈ પટેલ સાહેબ તથા વડોદરાના ધારાસભ્ય મનીષાબેન વકીલ તે ઉપસ્થિત રહ્યા અને અહીંયાના જે પ્રબુદ્ધ નાગરિકો છે એમને આ વિષય ઉપર એમની જે વાત છે એ મૂકી છે અને વાત નીચે સુધી સમાજ સુધી પહોંચે એ પ્રકારનો પ્રયત્ન આજે કરવામાં આવ્યો છે। 14મી એપ્રિલ એટલે બંધારણના ઘડવૈયા ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરના જન્મદિનને અનુલક્ષીને દેશભરમાં એમની પ્રતિભાને છાજે તે રીતના કાર્યક્રમો કરવામાં આવી રહ્યા છે। એની શ્રેણી રૂપે આજે છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના એકમ દ્વારા પ્રમુખ ઉમેશભાઈ અને એમની ટીમના નેતૃત્વમાં પ્રભારી રમેશભાઈ ઉકાણીના માર્ગદર્શન નીચે પ્રબુદ્ધ નાગરિક સંમેલન યોજીને એમાં ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરને કોંગ્રેસ દ્વારા સતત એમના જીવનકાળ દરમિયાન જે અન્યાયો થતા રહ્યા, એના જે અપમાનો થતા રહ્યા, એની તવારીખ અને એના વિરુદ્ધમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા એમને જે યથોચિત સન્માન આપવાના પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યા છે એની વિગતો, આ ઉપરાંત સંવિધાનનો એટલે કે ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે રચેલ આપણા દેશના આધારસ્તંભ રૂપ જે બંધારણ છે એ સંવિધાનનો કોંગ્રેસ પક્ષે પોતાના શાસનકાળ દરમિયાન જે સતત પોતાની ખુરશી બચાવવા માટે દુરુપયોગ કર્યો છે તે અને એની સામે ભારતીય જનતા પાર્ટી અને બિન કોંગ્રેસી સરકારોએ આ સંવિધાનને સન્માનિત કરીને એનો જરૂર પડે ત્યાં સુધી લોકહિત સિવાય ક્યાંય પણ બદલાવ નથી કર્યો। આ બાતને ઉજાગર કરવા માટેનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં ખૂબ મોટી સંખ્યામાં આ જિલ્લાના પ્રબુદ્ધ આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા। गुजरात के भरूच में सिविल अस्पताल में हज यात्रियों के लिए विशेष वैक्सीन कैंप का आयोजन किया गया। भरूच सिविल अस्पताल स्थित मेडिकल कॉलेज हॉल में हज कमेटी की ओर से विशेष वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें हज यात्रा पर जाने वाले लगभग 800 हाजियों को जरूरी वैक्सीन लगाई गई। यह पूरा आयोजन जिला स्वास्थ्य विभाग और सिविल अस्पताल की टीम के सहयोग से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कैंप को सफल बनाने में भरूच जिले के एफटी और एएफटी सदस्य जैसे अल्ताफ भोला, असीन पटेल, असफान पठान, आरिफ पटेल, तौशीफ, इनामुल पटेल, इलियास शेख और अन्य सदस्यों का विशेष योगदान रहा। गुजरात राज्य हज समिति तरफथी अहींया आज भरूच जिल्लाना लगभग 800 हाजीओनो वेक्सिनेशन केम्प चालू छे अने घणी सारी रीते वेक्सिनेशन चाली रहेलुं छे। अहींयाना डॉक्टरो, नर्स अने स्टाफ અને ડોક્ટર કિરણસિંહ પટેલ મેડિકલ કોલેજ ને એ લોકોનો ઘણો સરસ અને ઘણો સારો સહયોગ રહ્યો છે। ઘણી સાનિધ્ય થઈ રહેલું છે। વેક્સિનેશન પટા પછી રવિવારના રોજ મનુબર ખાતે હાજીઓનો ટ્રેનિંગ કેમ્પ યોજવામાં આવશે। દરેક હાજી હજારની ત્યાં અવશ્ય હાજરી આપે। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports,
art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Hotel Regenta Fairlark Vadodara, managed by Royal Orchid Hotels Limited, वडोदरा वासना भाईली रोड रिजेंटा फेयरलार्क का लार्क मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट का खूबसूरत एम्बियंस और डिलीशियस फूड आपके हर ओकेजन और फैमिली फ्रेंड्स गैदरिंग को बनाएगा मेमोरेबल। रिजेंटा फेयरलार्क में छोटे बड़े सभी फंक्शन के लिए अलग अलग कैपेसिटी के 3 शानदार बैंक्वेट, पीकॉक, डव और फ्लेमिंगो, 95 वेल अपॉइंटेड रूम्स एंड लग्जरी सूट्स रूम्स जो आपको देगा घर जैसा सुकून। खुद को तरोताजा करने रिजेंटा फेयरलार्क में ओपन टू स्काई स्विमिंग पूल और ब्यूटीफुली डिजाइन्ड स्पा की फैसिलिटी। रिजेंटा फेयरलार्क वडोदरा, दर्शनम कैपिटल नियर वेव्स क्लब, वासना भाईली रोड, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices: SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you fame. Why should only four-wheelers have all the luxury? Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Racecourse Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है। भैया
काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व्ड प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. Indians have so many vehicle choices: SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, same. Why should only four-wheelers have all the luxury? V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyasa's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात के वडोदरा में गुड फ्राइडे के अवसर पर शहर के विभिन्न चर्च में प्रार्थनाएं आयोजित की गई। गुड फ्राइडे यानी वो दिन जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। माना जाता है कि उन्होंने मानवता के उद्धार के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस दिन को स्मरण करते हुए शहर के तमाम चर्चों में विशेष सभाएं और प्रार्थनाएं रखी गईं। शहर के चर्च में बड़ी संख्या में ईसाई समुदाय के लोग पहुंचे और श्रद्धा से प्रार्थनाएं की। हर साल गुड फ्राइडे पर प्रभु यीशु के दुखों और बलिदान को याद कर ईसाई समाज आत्मचिंतन करता है। गुड फ्राइडे के अवसर पर लोगों ने शांति और प्रेम सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया। गुड फ्राइडे અમે ખરેખર એટલા માટે એને ગુડ ફ્રાઇડે કહીએ છીએ કે સમગ્ર પાપી માનવજાતને માટે આજથી 2025 વર્ષ પહેલા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આ પૃથ્વી પર આવ્યા
અને પાપીઓને માટે એમણે જન્મ લીધો, એમણે દુઃખ સહન કર્યું અને આજના દિવસે તેઓ વધસ્તંભે ચડાયા. એમણે કોઈ પાપ કર્યું નહોતું, એ તો નિષ્કલંક પવિત્ર ઈશ્વર તરફથી મોકલાયેલા હતા અને છતાં એ પાપરૂપ થયા અને આપણા માટે મરણ પામ્યા. એમણે વધસ્તંભ પર પોતાનો જીવ આપ્યો અને પોતાનું રક્ત વેવડાવ્યું અને ત્રીજા દિવસે એટલે રવિવારે ઈસ્ટરના દિવસે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું પુનરુત્થાન થયું. એ અમારો ખ્રિસ્તી વિશ્વાસ છે અને એટલા માટે જે કોઈ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પર વિશ્વાસ કરે તેનો નાશ ન થાય પણ તે અનંત જીવન પામે અને એ જ આ શુભ શુક્રવારનો ખાસ સંદેશ છે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આપણને जीवन મળે એટલા માટે પોતે મરણ પામ્યા. गुजरात कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने गुजरात उपचुनाव मामले बड़ा ऐलान किया है. आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग मुकुल वासनिक जी की अध्यक्षता में हुई. आज कमेटी ने हमारे आला कमान का दिल से धन्यवाद किया कि जो संगठन को मजबूत करने के लिए संगठन सर्जन अभियान जिला मथकों से टैलेंट ढूंढ के कार्यकर्ताओं की भावना के मुताबिक जिला अध्यक्ष और उसे एम्पावर्ड करने की बात, वहां से अच्छे नाम आए वो लेके उसको प्रदेश में भी कहीं ना कहीं स्थान मिलेगा. ये एक्सरसाइज का पायलट प्रोजेक्ट गुजरात में दिया. इसके लिए आला कमान का धन्यवाद किया. राहुल गांधी जी खुद AICC के सेशन के बाद तुरंत ये पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए आए तो उनका भी धन्यवाद किया. और एक पॉलिटिकल बात हमारी थी कि गुजरात में 2 असेंबली के उपचुनाव आ रहे हैं. इंडिया गठबंधन नेशनल लेवल पे इंटैक्ट है और आइडियोलॉजिकल रहेगा और हम लड़ेंगे. राज्यों में राज्य इकाइयां अपना तय करती है. हरियाणा में हमारी सरकार बिल्कुल 100% बन रही थी. आम आदमी पार्टी को वहां लड़ने की जरूरत नहीं थी पर उनके संजोग हो गए, पता नहीं क्या. कुछ सीटें हुड्डा जी ने ऑफर की, वो ठुकराई और वो लड़े. हरियाणा का रिजल्ट हमारे खिलाफ गया. दिल्ली में सभी सर्वे कह रहे थे कि आम आदमी की सरकार बनेगी, इसलिए पहले आम आदमी पार्टी ने डिक्लेयर कर दिया कि यहाँ पे कांग्रेस के हम गठबंधन नहीं करेंगे. उनका निर्णय था. फिर भी पार्लियामेंट में नेशनल लेवल के इश्यू पे हम साथ है और रहेंगे. गुजरात में एक गठबंधन का धर्म हमारे साथ बात किए बिना आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया. गुजरातियों की आज तक की ये तासीर रही है, एक कल्चर रहा है कि इधर बीजेपी या कांग्रेस, वो थर्ड फ्रंट कभी यहाँ स्वीकार नहीं हुआ. लास्ट इलेक्शन में पूरी ताकत यहाँ झोंक दी थी. आम आदमी के बड़े बड़े नेता नुक्कड़ों तक पहुंच के गए, फिर भी सिर्फ 11% उनको वोट मिला. मेन ऑपोजिशन पार्टी फिर भी कांग्रेस पार्टी रही है. यहाँ थर्ड फ्रंट को वोट नहीं मिलता है और इसीलिए बीजेपी को फायदा हो जाता है. वो हम नहीं चाहते हैं. इसलिए दोनों उपचुनाव कांग्रेस अपने सिंबल पे, अपने बलबूतों पे लड़ेगी. सूरत में सूर्यपुत्री तापी नदी में गर्मी के मौसम में केमिकल युक्त पानी छोड़ा जा रहा है. सूरत की जीवन रेखा मानी जाने वाली सूर्यपुत्री तापी नदी इन दिनों गंदगी और रासायनिक प्रदूषण की मार झेल रही है. भीषण गर्मी के मौसम में भी फ्लड गेट्स से नदी में केमिकल युक्त गंदा पानी छोड़े जाने की जानकारी सामने आई है. इस कारण न सिर्फ पीने के पानी की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है बल्कि इंटेक वेल से खींचे जाने वाले पानी का प्रोडक्शन भी घट गया है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बीजेपी के कॉर्पोरेटरों ने नाव में सवार होकर नदी का निरीक्षण किया. 3 किलोमीटर से ज्यादा लंबी इस यात्रा के दौरान गटर के कई अवैध कनेक्शन भी सामने आए जो सीधे नदी में मिल रहे हैं. इस निरीक्षण में सूरत महानगर पालिका की जल समिति के उपाध्यक्ष कृणाल पटेल भी मौजूद रहे. उन्होंने तापी नदी में लगातार गंदगी छोड़े जाने के मुद्दों पर गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं. जी कुणाल भाई, क्या है पानी गंदगी का पूरा मामला कैसे चल रहा है पूरा? कुछ दिनों से सूरत शहर के कई इलाकों में से गंदे पानी की काफ़ी सारी कंप्लेन आई थी. बाद में हमारे समिति की एक बैठक हुई थी, उसमें भी ये चर्चा का मुद्दा था कि पानी क्यों गंदा आ रहा है. बाद में हमारे समिति के अध्यक्ष जो हिमांशु भाई राहुल जी है, उन्होंने तपास के निर्देश दिए हुए थे और मुझे बोला था कि थोड़ा निगरानी रखे. मैंने रांडेरिंग टेकवेल, हमारे
उगट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे हमने देखा और कर्मचारी से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि नदी में से जो पानी आ रहा है वही गंदा आ रहा है। उनकी वजह से हम इतना ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने बाद में नदी का सर्च ऑपरेशन रखा। हमको मालूम हुआ कि नदी के काफ़ी इलाकों में से जो इलीगल ड्रेनेज आउटलेट है अभी भी चालू है और उनकी वजह से जो इलीगल्स है, जो एसएमसी को जानकारी के बगैर जो चालू रखे हैं, बाद में लिए हुए हैं जो आउटलेट्स है, वो उसके कारण जो भी गंदगी है वो नदी में जा रही है। और हमको ये भी मालूम हुआ कि कुछ कुछ जगहों पे जो तापी नदियों के बीचों बीच दारू के इलीगल एक्टिविटीज भी हो रही है, दारू के भट्ठे बन रहे हैं। और उन जो मछुआरे हैं उनके साथ बातचीत करने के बाद ये मालूम हुआ है कि कुछ लोग ये जो दारू बनाने के बाद दारू का जो वेस्ट मटेरियल है वो भी नदी में वो छोड़ रहे हैं, ताकि इसकी वजह से ये हमारी तापी नदी का जो पानी है वो दूषित हो रहा है। और हम इसके बारे में हमारे जो अध्यक्ष है हिमांशु भाई राहुल जी, उनको भी बताया। बाद में हमारे जो महापौर है दीक्षित भाई मावाणी जी, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है जिस राजेंद्र भाई पटेल से, उनसे बातचीत हुई है। और हम इनकी रजूआत हमारे जो सांसद है और कैबिनेट मंत्री है, जल संचय मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री श्री पाटिल साहब को भी करने वाले हैं। हमारे सांसद श्री मुकेश भाई दलाल जी को भी करने वाले हैं। हमारे जो कलेक्टर है, कलेक्टर जी को हम रजूआत करेंगे। कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर को भी इनके बारे में बताएंगे और इरिगेशन डिपार्टमेंट को भी सिंचाई विभाग को भी हम बताएंगे, ताकि हम सब मिलके ये जो इलीगल एंक्रोचमेंट है और इलीगल एक्टिविटीज जो चल रही है तापी के बीचों बीच और तापी के दोनों किनारों पे, वो हम बंद करवा सके और सूरत शहर के लोगों को अच्छा पानी दे सके। जो काफ़ी सारे जो इलीगल पशुपालकों है, जो गाय वगैरह उनके तबेले हैं, उनके जो वेस्ट मटेरियल है वो इस पे डंप हो रहा है नदी में। उनके जो वेस्ट मटेरियल डाल रहे हैं उनके खिलाफ हम एक्टिविटीज़ करेंगे, स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। और ये जो वेस्ट मटेरियल है उनके गोबर वगैरह वो नदी में ना आए डायरेक्ट, उसके खिलाफ हम एक्शन